सो नेक्स्ट टॉपिक इन योर सिलेबस ऑसिलेशंस इन अ स्प्रिंग। ठीक है, एक स्प्रिंग है, अगर वो हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा है, फ्रिक्शनलेस टेबल, हाइपोथेटिकल टेबल ओवर देयर, बट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, द स्प्रिंग इज हैविंग सम स्प्रिंग कांस्टेंट k, then what will happen if you have put a mass which is its equilibrium position over here attached to a spring. If you give it an initial displacement x in some direction, in a positive direction, the restoring force will develop in the spring to take it back to the mean position over there, f is equals to minus kx. That is the restoring force. Now, due to the restoring force of the spring, the elastic potential energy when it starts moving towards the mean position gets converted to what? Gets converted to we can say kinetic energy, and because of the kinetic energy, the spring moves behind to a negative displacement, which restores a negative restoring force again in the opposite direction to the mean position. ठीक है, तो इस कंडीशन में when the spring is oscillating about its mean position, the mass is oscillating about its mean position, you need to describe an expression for time period of the spring. ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना होगा ये सॉल्व करते हैं। हमारा restoring force developed in the spring as restoring force developed in a spring कितना हो जाएगा इन द स्प्रिंग, तो यूज किया है, उसका जो फोर्स कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो माइनस kx हो जाएगा। ठीक है, f = -kx। अब आल्सो हमको पता है फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, f = क्या होता है, m × a। in place of this, the acceleration which is produced in the spring is directly proportional to the restoring force। ठीक है, तो a की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं d²x/dt²। now this displacement is the displacement given to the spring or the mass from its mean position। ठीक है, तो ये भी है, तो let us equate it over there। ठीक है, इसको इक्वेशन मान ले लो, इसको इक्वेशन 2 equating 1 and 2, minus of kx is equals to m into d²x/dt²। ठीक है, m into d²x/dt²। यहां से हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव कर लेंगे फॉर दिस के। अभी देखो k के लिए वैल्यू क्या थी, दिस k इज द कांस्टेंट ओवर देयर, टेक आउट फ्रॉम हियर minus k by m multiplied by x is equals to d²x/dt²। यहाँ पर k क्या है, देखो स्प्रिंग कांस्टेंट है, ओके, d²x/dt²। now there was a constant which we described over there in the last part, that was omega। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट है यहाँ पर देखो k by m को हम लोग ओमेगा क्यों बोल सकते हैं, since we described omega square is equals to describe किए थे हम लोग कितना k by m, k equals to m omega square, m omega square की जगह पर k लिखे थे, तो omega square is equal to k by m की जगह पर हम लोग omega square सब्स्टिट्यूट करें, तो this becomes what, x omega square is equals to d²x/dt², d²x/dt²। ओके, हाँ ये माइनस चल रहा है, तो दिस विल बी माइनस। सो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग d²x/dt² is equal to x omega square, ये minus x omega square। ओके, एक्सेलरेशन इज आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट गिवन। अगर इसको पॉजिटिव मानेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप। ठीक, अब टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग के लिए, टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन के लिए एक्सप्रेशन ट्राई करेंगे। टाइम पीरियड का क्या फार्मूला होता है, t is equals to 2 pi, that is equals to displacement upon velocity, तो t is equals to 2 pi by omega बोल सकते हैं, t is equals to 2 pi by omega। ओमेगा की वैल्यू यहां पर पुट अप करेंगे, that is equals to 2 pi by root over k by m। ठीक है, रूट ओवर k by m आ जाएगा, ओमेगा पुट अप करना, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू k by m। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, तो 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेट अस सॉल्व इट ओवर हियर।
टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m अपॉन k. दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ स्प्रिंग व्हेन इट इज ऑसिलेटिंग अबाउट इट्स मीन पोजीशन. ये हो गया टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है 1 by t. तो इट बिकम्स व्हाट 1 by 2 पाई, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 by 2 पाई रूट ओवर k by. This is your expression for frequency of the oscillation. Okay. Now, how can the oscillations be understood in a vertical spring? देखो vertical spring जब होता है तो उस कंडीशन में there is also gravitational force acting on it. तो वो मास क्या है, खुद अपने वेट के कारण अपने मीन पोजीशन से, मतलब स्प्रिंग के मीन पोजीशन से खुद डिस्प्लेस हो जाएगा स्मॉल डी. ठीक है. So when it is suspended from a rigid support, what can you expect? When you suspend a mass under its own weight, it will get displaced from its mean position by some value m, so d, and the final displacement which is given to the spring over there would be what, d plus x. ठीक है. तो नीचे लिखेंगे write down if the spring constant of the spring is k, if the spring constant of the spring is k, the restoring force developed in the spring, the restoring force developed in the spring, the restoring force developed in the spring is only due to its weight is given by what, weight उसका force है, वो कितना डेवलप कर रहा है रिस्टोरिंग फोर्स, जब उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रहे, एक्स नहीं दे रहे, तो वो कितना हो जाएगा, x होगा तो यहाँ पर d टाइम्स kd हो जाएगा. ठीक है. स्प्रिंग कांस्टेंट टाइम्स d दैट इज इक्वल टू kd. ओके. अब जब हम उसको फाइनल डिस्प्लेसमेंट देते हैं, ठीक है, ऑन गिविंग ए फाइनल डिस्प्लेसमेंट x, तब रिस्टोरिंग फोर्स जो डेवलप हुआ, दैट रिस्टोरिंग फोर्स विल बी गिवन इक्वल टू जो वेट ऑफ द बॉडी है, ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी माइनस k टाइम्स d प्लस x. ये ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी माइनस k टाइम्स d प्लस x. क्यों? क्योंकि इसको तो वो नेचुरली ही डेवलप किया था, तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना डेवलप हुआ, जो हमने डिस्प्लेसमेंट दिया उसके कारण माइनस k d प्लस x. ठीक. अब इसको ओपन करके देखो, mg की जगह पर क्या लिखेंगे, kd इज इक्वल्स टू सॉरी माइनस kd प्लस kx. ठीक है, सॉरी माइनस kx, इसमें माइनस है, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, फिर से फोर्स की वैल्यू माइनस kx ही आती है. ठीक है. सो व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, whether it is a horizontal, whether it is a vertical spring, the restoring force developed over here is also F is equals to minus kx. सेम प्रोसीजर लगाओगे अगेन आपका. ठीक है. फ्रॉम सेकंड लॉ, जैसे हम लोग प्रीवियस में लगाए थे, फ्रॉम सेकंड लॉ क्या इक्वेशन आया था हमारे लिए, F is equals to minus kx that is equals to m into a is equals to minus kx. इक्वेट करने के बाद इक्वेशन क्या आया था हमारा, minus k by m x is equals to आया था minus ओमेगा स्क्वायर x. ठीक है. ये ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर डाल दी थी, k by m को ओमेगा स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया, देन पुटिंग द वैल्यू. टाइम पीरियड के लिए भी इक्वेशन सेम आएगा, फिर से डेरिवेशन रिपीट ना करके टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m अपॉन k. ये टाइम पीरियड के लिए इक्वेशन आया. टाइम पीरियड के लिए इक्वेशन t पाई 2 पाई रूट ओवर m अपॉन k, एंड फ्रीक्वेंसी के लिए ना हो जाएगा जस्ट इसका होगा 1 by 2 पाई रूट ओवर k by, तो वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन विल बी गिवन द सेम. ओके. Okay, so oscillations of a loaded spring when they are in combination. So combination of springs can be done how, two ways, series, parallel and series. ठीक है, series one after the other, अगर दो springs लगे हैं उसके बाद जिनके दो अलग-अलग spring constants हैं K1 K2, and same happens what happens in the parallel combination. Let us see. तो पहले series combination के लिए देख लेते हैं. If they are connected in parallel, so they are individually experiencing or individually experiencing the extension,
और स्प्रिंग कांस्टेंट के हिसाब से दोनों में रिस्टोरिंग फोर्स जो डेवलप होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो नीचे लिखेंगे रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड इन द टू स्प्रिंग्स, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड इन द टू स्प्रिंग्स is given by F1 ले लेते हैं पहला is equal to minus K1x, भाई डिस्प्लेसमेंट तो दोनों को सेम मिल रहा है, ठीक है, minus K1x और F2 is equal to कितना हो जाएगा, that is equal to minus K2 times x, minus K2 times x, ये होगा, ओके। नाउ टोटल रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा F टोटल, टोटल रिस्टोरिंग फोर्स F is equals to F1 plus F2, that is equals to दोनों में से कॉमन निकल जाएगा माइनस K1 plus K2 times x, ये हॉरिजॉन्टल के लिए देख रहे हैं हम लोग, इसलिए x ले रहे हैं, वर्टिकल के लिए y डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, ठीक है। इसको एक इक्वेशन बोल दो, इसको एक इक्वेशन बोल दो। अब ये K1 और K2 क्या है, दोनों का मिला करके स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करें तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एक नया स्प्रिंग कांस्टेंट, दैट इज द कॉम्बिनेशन Kp टाइम्स x, और यहाँ पर Kp की वैल्यू दैट इज द कॉम्बिनेशन स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू कितना आ रहा है भैया, K1 प्लस K2। ये एक्सप्रेशन आ रहा है कि अगर दो स्प्रिंग्स कंबाइंड हैं इन पैरेलल देन देयर स्प्रिंग कांस्टेंट्स ऐड अप, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैसे मिल जाएगी, इसके लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहां अगर हम तो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या था, न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ओवर k बाई n, तो वहां पर कॉम्बिनेशन का स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा, तो न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई रूट ओवर kp, मतलब k1 प्लस k2 टाइम्स बाई x m, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। न्यू इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन पैरेलल, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन पैरेलल के लिए न्यू p इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ओवर k1 प्लस k2 बाई n। अब स्प्रिंग्स जब सीरीज में कनेक्टेड हैं तब एक्सटेंशन जो डेवलप होगा उसके लिए क्या एक्सप्रेशन है, देखो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स दोनों कलेक्टिवली डेवलप करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये स्प्रिंग अकेले एक्सटेंड हो सकता है, ना ही ये स्प्रिंग अकेले एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है, ना ही कंप्रेस हो सकता है। सो ओवर देयर द रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड इन द टू स्प्रिंग्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज इज गिवन बाय F इज इक्वल टू, F की वैल्यू यहां पर देखो F1 F2 अलग अलग था, बट F इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस K1 टाइम्स x इज इक्वल टू माइनस K2 टाइम्स x, ठीक है, ओके। अच्छा नहीं, डिस्प्लेसमेंट दोनों में अलग अलग है तो x1 टाइम्स x2 बाय, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दोनों में अलग है भाई, ये सॉफ्ट स्प्रिंग हो तो ज्यादा एक्सटेंशन ले लेगा और ये सॉफ्ट होगा तो ये ज्यादा एक्सटेंशन ले लेगा, कम एक्सटेंशन, दूसरे हायर स्प्रिंग कांस्टेंट के हिसाब से एक्सटेंशन कम आ जाएगा, x1 x2 डिफरेंट है, ठीक है, ओके। चलो यहां से x1 की वैल्यू अगर निकालें x1 कितना हो जाएगा, x1 कितना हो जाएगा f बाई माइनस f बाई k1 और x2 कितना हो जाएगा माइनस f बाई k2, ठीक है, ओके, माइनस f बाई k2। टोटल एक्सटेंशन कितना प्रेडिक्ट हो जाएगा, टोटल एक्सटेंशन x is equal to x1 plus x2, x1 plus x2 होगा तो x is equal to हो जाएगा माइनस f by k1 प्लस माइनस f by k2, तो ये माइनस हो जाएगा माइनस f by k2, ठीक है। अब इसको अगर हम कंपेयर करते हैं, देखो किससे कंपेयर करेंगे, टोटल एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड x is equal to x1 plus x2 is equals to minus f by k1 plus minus f by k2, that is equals to, if we compare it, कॉमन इसमें से निकलेगा तो minus f times 1 by k1 plus 1 by k2, है। अब इसका एलसीएम ले लो, ये x का वैल्यू टोटल एक्सटेंशन x is equal to माइनस f कॉमन निकाल के तो प्लस आ जाएगा, एलसीएम लेकर के जब हम इसको सॉल्व करेंगे दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, नीचे आ जाएगा k1 k2 ऊपर आ जाएगा k1 प्लस
ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट आ रहा है कितना हो जाता है, फ्रॉम देयर वी कैलकुलेट x की वैल्यू आ गई कितना, दिस, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू माइनस x k1 k2 रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, k1 प्लस k2 हो जाएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल। मैं F के लिए सॉल्व कर रहा हूं, देखो मेरे को स्प्रिंग कांस्टेंट दे, तो F इज इक्वल टू माइनस एक्स की, तो उससे कंपेयर करना है, तो मैंने F के लिए सॉल्व किया, तो x टाइम्स कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो यहाँ से टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट आ रहा है, जब हम सीरीज में ज्वाइन कर रहे हैं तब कितना आ रहा है, k1 k2 बाई k1 प्लस k2, ठीक, ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू आ गया। फ्रीक्वेंसी व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ओवर ks बाई m कर देंगे, ks की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट, that is equals to k1 k2 by k1 plus k2, is that okay? तो न्यूमर्स के लिए एक्सप्रेशन आएगा 1/2 पाई रूट ओवर, जो ऊपर वाला है k1 k2 by m टाइम्स k1 plus k2, ये फ्रीक्वेंसी है सीरीज कॉम्बिनेशन।